We, I think they're going to start any minute. Yes, So we I'll can close begin my with the window. formal program. It's very exciting to hear, and I think let's begin this. So, a very warm welcome to all the participants and our esteemed resource person for the day, Dr. Shivani Mishra. I, Dr. Janvi Joshi, extend our welcome to all the participants who are here. Very briefly about our college, Dr. Bhanuben Mahendra Nanavati College of Home Science, Autonomous, was established in 1984. We request all participants to kindly mute themselves. Requesting all participants to kindly stay on mute. Thank you so much. So, Dr. Bhanuben Mahendra Nanavati College of Home Science was established in 1984 and has always sought to be a pioneer in academic pursuits. The college was re-accredited by National Assessment and Accreditation Council (NAC) with A+ grade and CGPA of 3.69 on 4. In May 2016, we received the UGC status of college with potential for excellence. In 2017, we received the Best College Award from Ascendity Women's University. Currently, we have the RUSA grants. We are recognized as a UGC Stride Research Capacity Building Center, and we are very happy to be where we are. As part of the department, we have a couple of specializations. One is a bachelor's in human development, which is offered under the home science program. And that is for anyone who has completed their 12th standard and wishes to pursue a very promising career. And the second course that we have is the postgraduate diploma in early childhood education. For this course, the eligibility is anyone with a bachelor's degree in arts, commerce, science, any of the fields. And if you are a person who feels interested in shaping young minds, definitely check out our course details, which will be shared with you shortly. I come to the topic of today's session, that is Garbha Sanskar, and we are very privileged to have with us Dr. Shivani Mishra. Dr. Shivani Mishra received her PhD in Sanskrit from Banasthali University in Rajasthan in 1991 for her research titled A Critical Analysis of the Contributions of Women to Sanskrit Literature from Vedic period till the 17th century. During her PhD, she made a detailed study of various Sanskrit texts such as the Vedas, Upanishads, Brahmanas, Aranyakas, Sutra Granth, and classical literature to search for the contributions of women to Sanskrit literature, and have carried out an exhaustive survey and critical analysis of their work to present it as the 610-page manuscript for the award of the degree. The bibliography of the thesis contained more than 200 references of the books consulted during the work. Currently, Dr. Shivani Mishra is a guest faculty at the Department of Women Studies in University of Lucknow. She has worked as an honorary research associate with Dr. Fred W. Clothy at the Department of Religious Studies of the University of Pittsburgh in USA from May 2002 to April 2004. The project involved the analysis of the views of Western scholars on the hymns of women's years of the Vedic age. She has worked on the editing and translation of several religious texts from 1993 to 2000. The main work was the editing of selected portions of the 4 Vedas and 15 Upanishads. These books have been published by Sacred Books at Fort Wayne, USA, and also translated the English version of the 2 books, that is the Veda and the Upanishads, into Hindi. She has written many books and has published her work widely. She teaches a course in Garbha Sanskar at the University of Lucknow, where she has both male and female students in equal percentage. And all of us here are equally excited and looking forward to today's session. Welcome, Dr. Shivani Mishra, and over to you.
You are on mute, ma'am. I think you are still on mute. Yes. Okay. Thanks a lot. Thank you, and thank you inviting me for this subject. As welcome everybody. you know, uh, you all must be aware about pregnancy and all as a student of home science, and especially आपके यहाँ तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है. प्रेगनेंसी में किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना. बट इन गर्भ संस्कार इट्स सच एन इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर हम कुछ चेंजेस करके इन अ लाइफस्टाइल मींस कैसे हमें रहना है, क्या हमें खाना है, क्या करना है, उसमें थोड़े थोड़े अगर हम चेंजेस कर सके तो हम क्या कर सकते हैं. वो जो लेडी है, वो जो लड़की है, द गर्ल हु इज गोइंग टू प्रेग्नेंट विद अ बेबी, हम उसके वो 9 मंथ्स को भी बेटर कर सकते हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंटली कि वो जो बेबी है, जो अभी जन्म लेने वाला बच्चे को हम एक बेटर चाइल्ड बना सकते हैं. और कैसे? फिजिकली बेटर, मेंटली बेटर, मॉरली जो स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली साउंड हो. क्योंकि एक पेरेंट्स और क्या चाहते हैं, आई थिंक एक पेरेंट्स, एक फैमिली सब यही चाहते हैं. और अल्टीमेटली एक सोसाइटी, एक कंट्री ये चाहता है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हो घर में. क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक बच्चे में इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पूरे खानदान, घर, देश का नाम रोशन भी कर सकता है और उसको डुबो भी सकता है. सो इन दैट प्रोस्पेक्टिव गर्भ संस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है. और ये क्या है? ये जो विजडम है हमारे यहाँ एंशिएंट इंडियन, जब हम अपना सारा पुराना साहित्य पढ़ते हैं, when we study वेद, उपनिषद, ये सब, तब हम देखते हैं कि ये नॉलेज, ये विजडम उस समय से हमारे पास थी. आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय हम वेदों को पढ़ते हैं तब हमको ये समझ में आता है कि that society was so good. अगर मैं ये कहूँ कि वो एक गोल्डन एज थी फॉर विमेन एंड फॉर एवरीबडी, तो ये कोई हाइपरबोलिक मेरी बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. क्योंकि मतलब एक स्त्री होने के नाते, एंड मैनी ऑफ यू आर विमेन, तो मैं आपको थोड़ा सा ये जरूर बताऊंगी कि वो टाइम कैसा था. जैसे अभी हम लोग देखते हैं, पास्ट में तो बहुत सी प्रॉब्लम्स थी. सती प्रथा थी, या दहेज प्रथा थी, या बहुत सी वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि विधवाओं की स्थिति, उनके साथ बहुत अजीब तरह का व्यवहार किया जाता है. अभी भी हम दहेज को देखते हैं. इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम उस सोसाइटी में थी ही नहीं. अगर मैं ये बोलूं तो कितना आश्चर्य लगता है. इसीलिए जिन्होंने भी वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, उन्होंने एकदम अलग तरीके से व्यवहार किया. जैसे कि आप सब जानते होंगे, आपने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा होगा,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ा होगा। ये सब कौन थे? इन्होंने वेदों को पढ़ा, और जब इन्होंने वेदों को पढ़ा देन दे अंडरस्टूड कि अरे हमारे इस इंडियन सिविलाइजेशन में तो कहीं ये सब कुछ था ही नहीं, विमेन रिलेटेड ये सब प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गई? क्योंकि मिडवेल पीरियड में आप सब जानते हैं कि बाहर के लोग आए, हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, तो क्या करा लोगों ने कि उन्होंने औरतों को बंद कर दिया घरों में, उनकी एजुकेशन नहीं हो पाई, उनको उस तरह से जितनी उनके अंदर चीजें थी, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी के भी डेवलपमेंट के लिए। तो जब उन लोगों ने इन वेदों को पढ़ा तब उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, आर्य समाज की स्थापना करी, और हम सब देखते हैं इन्होंने कितना काम किया, जिनकी वजह से सती प्रथा बंद हुई। अब तो खैर पूरी ही बंद है। जो बच्चों की एजुकेशन है, चाइल्ड एजुकेशन, उसमें भी अभी भी हम पूरा काम नहीं कर पाए हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह चाइल्ड एजुकेशन को हम ये कहें कि नहीं, सब जगह पढ़ाई हो रही है, लेकिन फिर भी काफी परिस्थितियां ठीक है। लेकिन एक जो मेन प्रॉब्लम है कन्या भ्रूण हत्या की, कि आप बच्चे को घर में ही नष्ट कर दे रहे, या दहेज की प्रथा अभी भी है, विधवाओं की स्थिति अभी भी हम देखते हैं, ये सब कुछ भी उस टाइम में नहीं था। मैं अगर आपको ये बताऊं कि उस टाइम में अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो एक हमें वेद मंत्र मिलता है, वो ये कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम उठो और दूसरे का हाथ थामो। ये सब मैं बातें आपको क्यों बता रही हूँ? इसलिए कि वो सोसाइटी कैसी थी, और उस सोसाइटी ने जब इस चीज का निर्णय किया कि हमें एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना सेट पैटर्न में गर्भ क्रिया को लेके चलना है। इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि जिस समय एक लड़की विवाह के बाद, अच्छा और एक बात और भी मैं बता दूं कि उस समय होता था कि पेरेंट्स ने बच्चों को, लड़कियों को कहा कि भाई तुम्हें इससे शादी करनी है, उससे शादी करनी है, ऐसे नहीं होता था। लड़कियां आपस में मिलते थे, अच्छे से एक दूसरे को समझते थे, और जब वो लगता था उनको कि हाँ इसके साथ मेरी मेंटल मैचिंग है, तो वो अपने पेरेंट्स से बोलते थे और उनकी शादी होती। एक और इम्पोर्टेंट और मजेदार बात आपको बताऊं कि उस समय ये जो हम I always feel, what is this? How can we, do child, or how can we give, कि जैसे कोई दान हम दे रहे हैं, ऐसे कैसे हम अपने बच्चे, तो ये सारी जितनी कुप्रथाएं था ही है, क्योंकि तब हम कैसे समझने, हम उसको कुछ कम समझने लगते हैं, अपने ही उस बच्चे को, उस लड़की को हम कम समझने लगते हैं। हमको लगता है कि ओके हम इसको किसी को भी दे सकते हैं, जबकि वो टाइम ऐसा नहीं था। वो टाइम कैसा था कि जिस समय जब विवाह होता था तो पति पकड़ता था, कहीं भी वेदों में, उपनिषदों में कहीं भी वर्णन नहीं है कि माता, वो सिर्फ उसका हाथ अपने हाथ में लेके कहता था कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा है और इसको मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, और हम तुम साथ में रहेंगे और अच्छी संतानों को जन्म देंगे इस समाज को बेटर बनाने के लिए। और जिस समय वो लड़की शादी होके घर आती थी तो उसको क्या कहा जाता था मालूम है? ये नहीं होता था कि एक मेड आ गई, मतलब एज इफ बहुत लोग ट्रीट करते हैं लड़कियों को कि अच्छा भाई काम में हाथ बटाओ। क्या कहा जाता था? साम्राज्ञी शुशरे भव। यहां से शुरू होता कि तुम अब इस परिवार के लिए रानी के समान हो, एक साम्राज्ञी के समान
सास ससुर देवर नंद सबके ऊपर तुम एक साम्राज्ञी की तरह हो और तुम अब इस घर का की देख रेख करोगे। आप सब जानते हैं उस समय 4 आश्रम होते थे और मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग का भी काम करती हूँ, तो बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि क्या करें, हाउ टू डील विद माय डॉटर इन लॉ। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अब आपका गृहस्थ का काम खत्म हो गया। नाउ यू हैव टू मेंटली थिंक योरसेल्फ गोइंग इन वानप्रस्थ आश्रम। अब आप उसको दीजिए समय, उसको देखने दीजिए अपने घर। एंड बिलीव मी, दिस इज द थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो उस समय वो लड़की आती थी, उसको सब लोग उतना ही आदर देते थे और उस लड़की को एक बड़े से ऊंची सी जगह पे बैठाला जाता था। ऐसा नहीं होता था जैसे आजकल हस्बैंड वाइफ राजा रानी की तरह बैठ जाते। नो वे, ओनली उस लड़की को बैठालते थे एंड एवरीवन यूज्ड टू ब्लेस हर और उसका पूरा आदर होता था। उस टाइम में एक और बड़ी स्पेशल मान्यता थी कि अगर किसी के घर में अगर स्त्री जो आई हुई लड़की है, बहू है, वो अगर रोती है तो उससे बहुत खराब पाप उत्पन्न होता है जिससे मुक्ति नहीं मिलती। तो आप सोचिए ऐसे एनवायरनमेंट में उस लड़की की कितनी केयर करी जाती है। और वो जब आती थी शादी होके, फिर वो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों प्रिपेयर करते थे कि, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन में जो शादी करने का एक ही पर्पस होता था और वो होता था अच्छी संतानों को जन्म देना। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि भी विवाह करते थे। जैसे हम आज देखते हैं ना कि जो जिसने सन्यास ले लिया या जो इस साइड में चले गए स्पिरिचुअलिटी में और सब में, तो दे डोंट मैरी, मतलब ऐसा नहीं होता था। वो भी विवाह करते थे, वो भी संतानों को जन्म देते थे और ये जरूर है कि वो आत्मज्ञान के प्रति प्रयत्नशील रहते थे। लेकिन वो अच्छी संतानों के लिए कामना करते थे। हम सब ही ऋषि संतान हैं। अगर आप सबको ये बात पता हो, आपका जो गोत्र होता है ना, भारद्वाज, अत्रि, इतने ढेर सारे गौतम, ये सब ऋषियों के ही नाम है, हम उन्हीं की संतान है। तो उस समय ना तो मतलब विवाह को तो सर्वोत्तम माना जाता था, इसीलिए ये चाहे ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास, इन चारों आश्रमों में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई आश्रम माना जाता था तो वो गृहस्थ को माना जाता, क्योंकि गृहस्थ में एक बच्चे को जन्म देकर ही हम एक सबसे बड़ा लेसन सीखते हैं और वो है अनकंडीशनल लव का, अनकंडीशनल कर्म का। क्योंकि हम एक अच्छे बच्चे को जन्म देते हैं किस लिए कि वो एक तो उस बच्चे का हम ध्यान रखते हैं अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, और फिर समाज के लिए एक अच्छे संतान का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो गर्भ संस्कार के आप सबको ये पता होगा कि हम लोग के ये एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन में गर्भ धारण से लेकर और मृत्यु तक 16 संस्कार कहे गए कि हर एक चीज को संस्कारों में विभक्त किया गया। संस्कार क्या है कि वो उसी एक चीज में आप कह सकते हैं एडिंग वैल्यू, एडिंग सम गुडनेस, वो चीजें होती है संस्कार। संस्करोति इति संस्कार, जो थोड़ा सा उसी चीज को परिष्कृत कर दे, वही चीज संस्कार। तो गर्भ संस्कार के अंदर तीन पहले, जो सबसे पहले तीन संस्कार हैं वो आते हैं। और सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार, उसके बाद है पुंसवन संस्कार और तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार।
अब जब मैं आप लोगों को ये सब बताऊंगी ना, तो सच में आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना आनंद आएगा कि वो लोग सिर्फ, जैसे कहते हैं ना कि कोरी बातें नहीं करते थे, कितनी इम्पोर्टेंस देते थे हर एक की फीलिंग्स को, हर एक की कैसे उसकी देखभाल होनी चाहिए, समाज के सारे जितने भी लोग हैं उनकी। तो जब गर्भाधान संस्कार की हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में भी हमें उसका उल्लेख मिलता है, लेकिन बड़े डिटेल में। जो चौथा वेद है जिसको कहते हैं अथर्ववेद, अथर्ववेद से ही आप सब जानते हैं आयुर्वेद, ज्योतिषी सब निकला हुआ है। तो ये सब वेद, आप सबको उनका अर्थ मालूम होगा, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो ये सब ज्ञान के भंडार है। ऐसा लगता है कि इतना ज्ञान इन्होंने कैसे समेट दिया, जबकि बहुत बड़े हैं वेद, लेकिन फिर भी एक छोटी छोटी ऋचाओं में उन्होंने बहुत ज्ञान डाल दिया। और आप सब जानते होंगे कि विदेशों में इस पे जितना काम हो रहा है, वेदों पे रिसर्चेस हो रही हैं, और एक के बाद वो एक बहुत सी जिसको कहते हैं ना डिस्कवरीज कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उन चीजों को अगर अपनाना शुरू करें तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा होगा। तो गर्भाधान संस्कार का जिस तरह से अथर्ववेद में उल्लेख है, उसमें वो कहते हैं कि गर्भ धारण करने के पहले जो वो भावी दंपति है, मतलब उस लड़के और लड़की को पहले मेंटली एंड फिजिकली अपने को प्रिपेयर करना पड़ता है। आप सब जानते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है, हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड रुका तो हमको ये समझ में आता है कि ओके आई एम प्रेग्नेंट, लेकिन it's not a simple thing. We have to be mentally prepared for welcoming a child. तो वो दोनों क्या अपने को प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले वो अपना आहार और विहार दोनों ठीक करते हैं। आहार से मतलब है सात्विक आहार खाते हैं। आप सब जानते हैं कि जैसा यथा अन्न तथा तन तथा मन, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारा तन भी हो जाता है और वैसे ही हमारा मन भी होता है। तो सात्विक आहार खाना वो शुरू करते, और उसके बाद वो क्या करते, अपने विहार पे ध्यान देते। विहार से मतलब क्या है कि हमें कैसे रहना है, अपने को मेंटली कैसे, इमोशनली अपने को कैसे फिट करना है, फिट रहना है। और उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहली चीज है आपका मन शांत होना चाहिए। उसके लिए ध्यान, योग, ये जो योग करते हैं ना, हमको लगता है कि यही योग है, योगासन को ही हम योग समझते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें मिली हुई हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आसन जो है, आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर ध्यान, धारणा, समाधि ऐसे करके चलता है, प्रत्याहार ऐसे करके। तो वो आसन करके और इन सब से करके अपने को फिट करते थे। एंड देन जिस दिन वो गर्भ धारण के लिए निश्चित होता था, और एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि गर्भ धारण दिन में नहीं किया जाता, क्योंकि दिन में धारण करने को, गर्भ धारण करने को सुश्रुत, चरक, ये सब मैंने जब से मैंने ये पढ़ाना शुरू किया तो मैंने इनको भी पढ़ डाला क्योंकि पढ़ना ही मेरी एक हॉबी है, हैबिट है, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब हम सुश्रुत को पढ़ते हैं, आप सब जानते होंगे ये लोग बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, तो वो कहते हैं कि किसी भी संतान को अगर हम दिन में कंसीव करते हैं
और रात में कंसीव करते हैं तो बहुत अंतर होता है। तो एक अच्छी संतान के लिए हमेशा हमको उसको रात में कंसीव करना चाहिए। और जो सुश्रुत है वो क्या बताते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे है, मतलब जिस दिन से आपका मेंसेस स्टार्ट हो रहा है, उस दिन से एक लड़की को कैसे व्यवहार करना है, तो वो क्या कहते हैं कि उस ब्रह्मचारिणी स्त्री को, मतलब वो 1 महीने पहले जो प्रिपरेशन पीरियड है उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो लड़का भी और वो लड़की भी। सेलिबेसी जानते हैं ना, ब्रह्मचर्य। तो उस ब्रह्मचारिणी स्त्री को ऋतुकाल में क्या करना चाहिए, इसको वो ऋतुकाल कहते हैं। जो ये मान लीजिए हमने ये सोचा कि इस महीने हम कंसीव करेंगे बच्चे को, तो जो पहला दिन है आपके मेंस्ट्रुएशन पीरियड का, वो ऋतुकाल फिर आपका आरंभ हो जाता है। तो वो ऋतुकाल के पहले दिन से उस लड़की को कैसे बिहेव करना है, उसको दिन में नहीं सोना है, फिर रात में नहीं जागना है, उसको आंखों में अंजन नहीं लगाना, अंजन कहते हैं काजल को, और रोना नहीं है, जबरदस्ती का दुखी नहीं होना है, अपने को स्ट्रांग रखना है, सिर से स्नान नहीं करना है, उपटन नहीं लगाना है। आप बहुत से लोग मतलब भारतवर्ष में ये तो एक चीज चलती चली आ रही है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के 3 दिन बाद ही सर्द होते हैं, लोग सर्द होके नहाते हैं। तो ये सुश्रुत ने बोला होगा, तब से हमारी दादी नानी हम लोग को बताती चली आई, तो इसलिए अधिकतर हमारा जो कल्चर है उसमें इस चीज को माना जाता है। उपटन नहीं लगाना है उसको, नाखून नहीं काटने, और इन सब का रीजन वो बताते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। दौड़ना नहीं है, मतलब इधर उधर दौड़ रहे हैं, ऊंचे से नहीं हंसना है, मतलब खूब कस के ठहाका लगा के नहीं हंसना है, बहुत बोलना नहीं है, ऊंचे शब्दों को नहीं सुनना, मीन्स लाउड म्यूजिक जो है उसको नहीं सुनना है, या लोग बहुत तेज तेज बातें कर रहे हैं आप उसको सुन रहे हैं, बालों को कस कस के खुजलाना नहीं है, और परिश्रम नहीं करना कि आप बहुत फिजिकल लेबर कर, और वो इन सब का आपको रीजन देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर वो स्त्री जो है वो दिन में सोती है तो बच्चा कैसा होता है, बड़ा स्लीपी टाइप का होता है, निद्रालु, सो रहा है सो रहा है, तो वो बच्चा बहुत एक्टिव नहीं हुआ ना, तो वो तो मतलब बहुत अच्छा बच्चा नहीं है। अंजन से वो कहते हैं इन बात हो रही है, वो कहते हैं फर्स्ट 3 डेज मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के फर्स्ट 3 डेज में आपको क्या नहीं करना है, अपनी आंखों में सुरमा, अंजन, काजल नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो बच्चा अंधा हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है। रोने से उसकी आईसाइट कमजोर भी हो सकती है, और वो उसको स्क्विंट भी हो सकता है, विकृत दृष्टि वाला हो सकता है। स्नान और अनुलेपन से दुखशील हो सकता है। आप देखते हैं ना कुछ बड़े क्राई बेबी टाइप के होते हैं, बहुत रोते रहते हैं रोते रहते हैं रोते रहते हैं बच्चे, हैप्पी चाइल्ड नहीं होते, और ऐसे बच्चों को पालना माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है, जो बेमतलब में आप उनका पेट भी भर दीजिए, उनको ठंडा गर्म भी नहीं लग रहा है, उनको सब कुछ हो रहा है, लेकिन बट दे क्राई अ लॉट। है कि अगर आप इस तरह से स्नान और अनुलेपन करेंगे, उपटन उपटन लगाएंगे उन 3 दिनों में, तो बच्चा दुखशील होगा। तेल की मालिश नहीं करनी है, उससे क्या होगा, स्किन डिजीज हो सकती है बच्चे को, जो बच्चे बहुत से पैदा होते हैं उनको स्किन डिजीज रहती है। नाखून काटने से उस बच्चे के नाखून दूषित होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे। भागने से, अगर आप बहुत ज्यादा इधर उधर भागते दौड़ते हैं तो उससे क्या होगा, बच्चा हाइपर एक्टिव होगा,
और जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे टाइम सोते रहने वाले या रोते रहने वाले बच्चों को पालना बहुत मतलब सोते रहने वाले में तो फिर भी आप थोड़ा कर सकते हैं, रोते बच्चे को पालना भी बड़ा टफ जॉब होता है। उसी तरीके से जो हाइपर एक्टिव है बच्चा, उसको पालना भी माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल काम है। ऊंचे स्वर में हंसने से उसके दांत उठे हुए होते हैं। आप देखते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं जिनके दांत उठे हुए होते हैं और उनके ओंठ भी बच्चों के काले रंग के हो जाते हैं अगर आप बहुत तेज से हंसते हैं। और बहुत बोलने से, अगर उस टाइम में आप बहुत बोलते हैं तो बच्चा भी ओवर टॉकेटिव होता है, बहुत बोलता है। ऊंचा सुनने से डेफ हो जाता है बच्चा। और ये सारी बातें जो सुश्रुत ने लिखी है, ऐसा नहीं है कि सुश्रुत संगीता जब आप पढ़ते हैं ना तो बस उन्होंने ऐसे कुछ भी लिखते चले गए। नो वे, देयर आर मैनी मैनी, जैसे कहते हैं ना, बहुत ढेर सारे आयुर्वेदाचार्य हैं जिनकी बातों को सुन के समझ के फिर उन्होंने उस सबको सुश्रुत संहिता में कंसाइज किया है। चरक इनके बाद के हैं तो वो सुश्रुत की बातों को भी पहले रखते हैं, फिर अपनी बात लिखते हैं। और वो कहते हैं सिर खुजाने से, खूब आप सर खुजा रहे हैं उस टाइम में मेंस्ट्रुएशन पीरियड के 3 दिन में, तो क्या हो जाता है, बच्चा जल्दी गंजा हो जाता है। आप देखते हैं बहुत से लोगों के बाल जल्दी झड़ जाते हैं। और ओवर अगर आप परिश्रम करते हैं उस टाइम में तो क्या होता है, बच्चे का ब्रेन सही डेवलप नहीं होता, वो उन्मत्त भी हो सकता है। उन्मत्त मतलब थोड़ा सा उसका ब्रेन सही नहीं डेवलप है, पागल आप कह सकते हैं, थोड़ा सा उसका ऐसा हो सकता है। तो ये चीजें हम काफी बच्चों को देखते हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनके अंदर बहुत सी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये इनसे रिलेटेड है, इन चीजों से रिलेटेड है, ऐसा सुश्रुत जो सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं उनका मानना। तो अगर हम इन चीजों को, 3 ही दिन की बात है, उनको अगर हम कर सकते हैं तो आई थिंक एवरीवन शुड डू इट। फिर वो क्या कहते हैं कि चौथे दिन क्या करना है, 4th डे अच्छे से उसको सिर से स्नान करना है उस लड़की को, और अच्छे से गहने वगैरह पहनना है। और उसके बाद वो उसको अपने पति को सबसे पहले देखना है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि हम सबको जानना चाहिए। वो कहते हैं क्यों देखना है पति को, इसलिए देखना है क्योंकि ये ऋतु स्नान कहते हैं इसको, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बाद जो हम सर से स्नान करते हैं, इसको ऋतु स्नान कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ऋतु स्नान करने के बाद जो लड़की है वो जिसको सबसे पहले देखती है वो बच्चा उसी की तरह होता है, मतलब उसकी शक्ल, उस बच्चे की शक्ल बहुत मिलती है, एक दूसरे से मिलती है। इसलिए वो कहते हैं पति को देखना चाहिए। और अगर मान लीजिए पति कहीं बाहर गया है, नहीं है सामने, कुछ है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी महान, जैसे आपको जिस तरह के व्यक्ति ऐसे अपनी संतान चाहिए, उनकी शक्ल आप देखिए। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान की फोटो देखनी चाहिए, तो ठीक है भगवान की फोटो देखिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ना तो आप हनुमान जी की फोटो देखिए, ना गणेश जी की फोटो देखिए, क्योंकि वो दूसरे रूप में है। इसलिए आप कृष्ण भगवान की फोटो देखिए, लेकिन जो विष्णु जी की 4 भुजाधारी फोटो है उसको भी नहीं देखिए। तो क्योंकि वो कहते हैं इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तभी हम लोग कई बार देखते हैं ना
कि बच्चा एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने फादर की, या एग्जैक्ट कॉपी होता है अपनी मदर की। माँ ने स्वयं को देखा, अपने फेस को देखा, या अपने बाबा की या दादी की या किसी की, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो स्नान करने के बाद स्त्री जिसको देखती है उसकी तरह का वो बच्चा होता है। अब वो ये भी हमको बताते हैं कि कौन सी तिथियों में हमें कंसीव करना चाहिए, मतलब उन स्त्री और पुरुष को। तो वो तिथियां हैं जो 4th है ना, 4th से लेकर 12th तक, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये जो है ये बेस्ट मानी गई है कंसीव करने। तो इन्हीं तिथियों में कंसीव करना चाहिए। और इनमें भी जो उत्तरोत्तर है, मतलब मान लीजिए 4th को कंसीव करते हैं या आप 8th को कंसीव करते हैं, तो 8th इज बेटर देन 4th। किस लिए? वो आयु के लिए, वो व्यक्ति जो बच्चा जन्म लेगा उसकी आयु ज्यादा, वो आयु का होगा, ज्यादा वो प्रॉस्परस होगा, ज्यादा वो स्वस्थ होगा। तो 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। अब दिन भी ये ज्योतिष और आयुर्वेद इन दोनों के हिसाब से कुछ दिन भी बताए गए हैं कि किन दिनों में ही कंसीव करना चाहिए, जो बहुत ऑस्पिशियस है डेज फॉर कंसीविंग अ चाइल्ड। और वो है मंडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। मंडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। क्या कहते हैं? ट्यूसडे, सैटरडे और संडे को अवॉइड करना चाहिए, कि हम इन 3 दिनों में ट्यूसडे, सैटरडे और संडे को अवॉइड करना चाहिए फॉर कंसेप्शन। मंडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडेज आर द बेस्ट डेज फॉर कंसेप्शन। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि अथर्ववेद में कैसे उस गर्भाधान संस्कार को वो कंडक्ट करते थे, कैसे होता था। तो 4th डे, जैसा आपको पता है, वो सिर से स्नान करके, उन दोनों को पता है, उनकी फैमिली को पता है कि ये आज गर्भाधान संस्कार को करेंगे ये दोनों बच्चे हमारे घर के। तो वो क्या होता था, उस दिन वो स्नान करके पूजा करते थे, हवन करते थे। आपको मालूम है हम लोग हवन और इन सब चीजों को इतना महत्व नहीं देते। हमको लगता है अरे हवन क्या है, ये तो क्या बना रखा है जबरदस्ती का नीचो। लेकिन अभी लेटेस्ट फाइंडिंग आई है और उसमें क्या है कि ये जो आम की लकड़ी है, इस पे जो हवन की सामग्री है, इस पे उन्होंने रिसर्च करी बाहर की, और उसको घी मिला के जब डाला जाता है तो उस पूरे एक रूम में जहां पर ये हवन हो रहा है, 1 महीने तक कोई भी वायरस पनप नहीं पाता। कितनी बड़ी ये साइंस है। और क्योंकि वेस्ट ने अब मुहर लगा दी कि भाई हाँ, ये हवन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आप लोगों को मतलब आइडिया नहीं होगा कि वेस्ट में कितने लोग अपने घर में बैठ के रोज डेली अग्निहोत्र करते हैं। ऐसा नहीं है, वहां पर रहने वाले हिंदू जो और भी हैं वो सब करते हैं, क्योंकि नाउ दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स। तो वो हवन करते थे। वो हवन से क्या होता है, पूरी शुद्धि हो जाती, और फिर वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते थे। रात में जो स्त्री है वो और पुरुष दोनों देवी देवताओं का की स्तुति करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे। वो तो वैदिक मंत्र हैं, उनमें प्रार्थना करते थे वो, कि उनको एक अच्छी संतान
प्राप्त हो, ऐसी संतान प्राप्त हो जो न केवल इस वंश का नाम रोशन करे, बल्कि वो सारे समाज के लिए कुछ अच्छा करने वाली हो, इस देश के लिए कुछ अच्छा करने वाली हो। तो उन वैदिक मंत्रों को नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि ईश्वर को तो सारी लैंग्वेज आती है, वो उन्हीं से हमको ज्ञान मिला है। तो जो भी आपकी भाषा है, उस अपनी भाषा में रात में कंसेप्शन से पहले ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए उन दोनों हस्बैंड और वाइफ को कि वो उनको एक अच्छी संतान को जन्म दे। जो भी आपकी भाषा है, उस भाषा में आप भगवान से, जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, कोई ये जरूरी थोड़ा ना है कि किसी को ही मानना है, नहीं। ईश्वर तो जैसे कहते हैं ना, वो एक ही है, ये हम लोग हैं जो उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उसकी वजह से वो अलग अलग नहीं हो जाते। तो जो आपकी भाषा है, जो आपके आराध्य हैं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको एक अच्छी संतान को जन्म दे। आप कहेंगे कि इतना ऐसे क्या है, प्रार्थना कर देने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। आप लोग ने क्वांटम साइंस पढ़िए, देन यू विल रियलाइज एवरीथिंग इज एनर्जी। आप गूगल पे सर्च करिएगा और देखिएगा कि पानी की प्रॉपर्टीज, वाटर की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो जाती हैं। अगर आप मान लीजिए आपने एक ग्लास में पानी लिया और उसको आप अलग अलग भावनाओं से देखिए, और वो जो पानी है वो अलग अलग शेप्स ले लेता है। हर एक को गूगल चेक करना आता है, आज आप जाइएगा और उसको चेक करिएगा, देन यू विल रियलाइज कि एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके भावनाएं, आपका सोचने का ढंग, हर चीज इम्पैक्ट डालता है, हर चीज, क्योंकि हर चीज अल्टीमेटली एक एनर्जी है, एनर्जी फॉर्म है। तो जब हम इस तरह का मन में विचार करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है कि उसी तरह की संतान का जन्म होता है। और जिस समय एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन यू फील कि यू आर गोइंग टू डिस्चार्ज, आपका हस्बैंड और वो लड़की दोनों को उस समय भी हृदय से अपने ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो भी तुम संतान हमें दे रहे हो, वो हर तरह से फिजिकली फिट हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, अलर्ट हो, इंटेलिजेंट हो, और मॉरली भी बहुत अच्छा ये बच्चा हो, ये जीव जिसको मैं गर्भ में धारण करने जा रही हूँ, वो हर तरह से बहुत ही अच्छा। आपको मालूम है कि ये जो मैंने आपको बात बताई कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसका आपको मालूम है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप सबने महाभारत देखी होगी, सुनी होगी, किसी ने पढ़ी होगी। आप सब जानते हैं उसमें एक धृतराष्ट्र थे, एक पांडु थे, एक विदुर थे। और ये तीनों लोग, चाहे वो धृतराष्ट्र थे, पांडु थे, विदुर थे, इन तीनों के पिता एक थे, वो थे ऋषि व्यास, और इनकी माँ अलग अलग थी। नियोग से ये तीनों बच्चों का जन्म हुआ। तो क्या हुआ कि जब धृतराष्ट्र की माँ उनके पास गई नियोग के लिए, तो वो उनका रूप, क्योंकि वो तपस्या करके उठ के आए थे, तो उनका ऑब्वियसली बाल बड़े हुए और रंग रूप अजीब सा था। तो वो उनको देख के डर गई और उन्होंने कस के अपनी आंख बंद कर ली। तो उससे क्या हुआ कि वो बच्चा धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुआ।
इसी तरीके से पांडु की जो माँ थी वो इतना डर गई उनको देखकर कि वो पीली पड़ गई और भय से कांपने लगी। तो इसलिए पांडु कैसे थे, तो उनका रंग भी पीला था इसलिए उनका नाम पांडु था, और वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, वो एकदम बीमार से बच्चे थे। उसी जगह विदुर की जो माँ थी वो एक दासी थी, लेकिन उनको ये लगा, क्योंकि इन दोनों स्त्रियों ने, इन दोनों रानी की मतलब जो राजकुमारियां थी, उन्होंने उनको पहले भेजा कि भाई तुम जाओ और तुम देखो कि वो कैसे हैं। तो उनको ये पता था कि ये इतने बड़े ऋषि हैं, इनसे मुझे बहुत अच्छा पुत्र मिल सकता है जो हर तरह से बुद्धिमान अच्छा होगा। तो उन्होंने क्या करा कि वो ये जानकर बहुत प्रसन्न मन से उनके पास गई और उन्होंने प्रसन्न मन से ही उस बच्चे को कंसीव किया। और वो बच्चा कौन था, उसका नाम था विदुर, जिनकी विदुर नीति हर तरह से फिजिकली मेंटली फिट, इतना मतलब जैसे कहते हैं ना एक्सीलेंट, जिनके इतना बड़ा भगवान कृष्ण का भक्त, इस तरह का जैसे कहते हैं ना ओवरऑल हर तरह से अच्छा वो बच्चा उसने जन्म लिया, उनका नाम है विदुर। इन्हीं सब कारणों से मुझे ऐसा लगता है कि उस वैदिक पीरियड में स्त्रियों की इतनी इम्पोर्टेंस थी, इतना उनको महत्व दिया जाता था कि उनकी इतनी देखभाल करी जाती। आपको मालूम है कि आप सब लोग जानते होंगे दैत्य और जो हमारे देवता हैं, इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि भाई दैत्य बड़े खराब हैं, असुर हैं, और देवता बहुत अच्छे हैं। आपको पता है उनके भी पिता एक ही थे, ऋषि कश्यप, लेकिन उनकी माँ अलग अलग थी, दिति और अदिति। दिति जो थी उनके अंदर सारी निगेटिव क्वालिटीज थी, और जो अदिति थी उनमें सारी पॉजिटिव क्वालिटीज थी। तो दिति से दैत्यों ने जन्म लिया और अदिति से आदित्यों ने, आदित्य कहते हैं देवताओं, उन्होंने जन्म। तो इतनी इम्पोर्टेंस है माँ की और कंसेप्शन के टाइम की, उस समय वो किस तरह से बिहेव करती है इसकी। अगर हमारे अपने हाथ में है कि हम एक अच्छी संतान को जन्म दे सकते हैं, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता, क्योंकि एक बच्चा कितनी इम्पोर्टेंस रखता है पेरेंट्स के लिए। एक अच्छा बच्चा है, एक स्वस्थ बच्चा है, उसको पालना बहुत आसान है। आपका सारा बायजूस का खर्चा बच जाएगा अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। अगर मॉरली स्ट्रांग है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब जो सुश्रुत है वो ये भी कहते हैं कि भाई ठीक है, गर्भ धारण कर लिया उस स्त्री ने, तो उस स्त्री को कैसे व्यवहार करना है। अब यहाँ पर स्त्री के व्यवहार के साथ मैं आप लोगों को अभी इसके आगे, मैंने आपको बताया ना कि 3 संस्कार हैं जो गर्भ संस्कार के अंतर्गत आते हैं। एक है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, और तीसरा है सीमंत या सीमंतोन्नय। तो पुंसवन संस्कार इतना अच्छा संस्कार है, उसके अंदर 3 भाग होते हैं। पहला औषधि अवग्रहण, दूसरा होता है ओथ टेकिंग या वूम वर्शिप, और तीसरा होता है खीर खिलाना। तो उसमें जो सेकंड पार्ट है वूम वर्शिप में, उसमें ओथ ली जाती है बाकायदा। मदर, फादर एंड ऑल फैमिली मेंबर्स दे टेक ओथ कि वो इस बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। माँ कहती है कि भाई हम अपने पेट पे हाथ रख के कहती है
कि मैं हर तरह से अच्छा ही भोजन करूंगी, मैं हर तरीके से अपने को स्वस्थ रखने की कोशिश करूंगी, मेंटली, फिजिकली। और इसलिए मैं जो देखूंगी वो अच्छा देखूंगी, जो सुनूंगी वो मैं अच्छा सुनूंगी, मैं अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ूंगी, चाहे वो गीता है, रामायण है, कुरान है, मतलब जो भी आपके ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहब है, सब में अच्छी बातें लिखी, उनको पढ़ूंगी। इधर उधर की चीजों को जो भय उत्पन्न करे, जो मेरे अंदर क्रोध को उत्पन्न करे, ऐसे काम मैं नहीं करूंगी। और इसी तरीके से जो पति है वो अपनी पत्नी के दाहिने कंधे पर हाथ रख के क्या कहता है कि मैं ये, आप देखते हैं, आप आजकल तो कई जगह ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ अकेले रह रहे हैं, फैमिली रही नहीं रही, तब फिर हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। वो ये नहीं कर सकता कि ओके आई एम द फादर, दैट्स इट, नो। उसको पूरा एक ओथ लेनी होती है कि मैं इन 9 महीनों में तुम्हारा ध्यान रखूंगा, अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा, कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बनने दूंगा घर में कि जिससे वो दुखी हो या वो परेशान हो। उसके खाने पीने का ध्यान रखूंगा, उसकी सब छोटी सी छोटी जरूरतों का ध्यान रखूंगा, इस बच्चे के प्रति निरंतर स्नेह करूंगा। और ऐसे ही जो हस्बैंड वाइफ या लड़के लड़की जो प्रेग्नेंट है वो फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली मेंबर्स को भी ओथ लेनी होती है कि वो एक सबसे अच्छा वातावरण क्रिएट करेंगे इस बच्चे के लिए, कि जिस वातावरण में वो बच्चा हर तरह से फिजिकली, मेंटली एकदम सही रहे। अब सोचिए ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। कितनी लड़कियां प्रेग्नेंट है, उनके फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं है कि इनके साथ कैसे बिहेव करना है। वो उस समय भी अपनी सारी जो उनको करना है, अच्छे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छे नहीं है तो कितनी प्रॉब्लम्स वो फेस करती। सिर्फ 9 महीने की बात है। 9 महीने बाद जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो आपके ही वंश में जन्म लेगा, आपके ही वंश का नाम रोशन या मिट्टी में मिला देगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान देना होता है। इतने कम टाइम के लिए अगर हम अच्छे से ढंग से व्यवहार करके एक अच्छी संतान प्राप्त कर सकते हैं तो सबको करना चाहिए। तो सुश्रुत कहते हैं कि गर्भिणी स्त्री जो है उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने बड़े डिटेल में बताया। सबसे पहला काम उसको करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि चाहे वो मतलब फिजिकल एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे प्राणायाम है, कुछ ऐसे आसन है जो सिर्फ गर्भिणी स्त्री के लिए बनाए जाते हैं, मतलब अलाउड है उनको। योग में वो कर सकती है, और वो क्यों उसको, और वो भी एक टाइम के बाद उसको करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट मतलब सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ और एट्थ में मिसकैरेज के बहुत चांसेस होते हैं। तो उन महीनों में कोई भी तरह का, किसी भी तरह का व्यायाम नहीं करना चाहिए। और अगर किसी बहुत ट्रेन्ड किसी से आप, वो आपको आसन बता रहे हैं या जो प्राणायाम बता रहे हैं, बस उतना करिए। इसमें हर चीज को, आपको किसी भी चीज को ओवरडू नहीं करना है प्रेगनेंसी में। तो वो कहते हैं व्यायाम नहीं करना, फिर सेक्स नहीं करना है, क्योंकि वो बच्चे के लिए नुकसान करता है। उसका सर अगर नीचे जब आ जाता है तब तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होता
ऐसा भोजन जो शरीर के लिए अच्छा ना हो वो नहीं करना। मैंने आपको पहले ही बताया प्रिपरेशन में ही आपको सात्विक भोजन आरंभ कर देना है करना। सात्विक मतलब वेजिटेरियन डाइट करनी है, वेजिटेरियन फूड खाना है। आप सबको पता है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट आपके पेट डाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल होती है उसको डाइजेस्ट करना। और अब तो ये सब लोग बोलते हैं कि जो भी जिस जानवर को मारा जाता है उसके जो एट द टाइम ऑफ डेथ उसकी जो फीलिंग्स होती है वो तक उसके अंदर आ जाती। तो आप जब शुरू कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन तभी से आपको वेजिटेरियन फूड ही खाना है। और वेजिटेरियन में भी ऐसा फूड नहीं खाना है जो आपके शरीर के लिए ठीक ना हो। ऐसा फूड लेना है जो आपके शरीर को पुष्ट करे, अच्छा करे, उसको पोषण दे। दिन में नहीं सोना है, इन 9 मंथ्स में भी दिन में सोने से बचना चाहिए। और रात में जागना नहीं, लेट नाइट जागना नहीं। शोक नहीं करना है, मतलब दुखी नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जिसमें आप यू कैन नॉट कंट्रोल, वो बात अलग है। अदरवाइज आपको ये समझना है कि इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ेगा हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में, इसलिए शोक नहीं करना। सवारियों पे जैसे घुड़सवारी ये सब नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फीटस मतलब जो भी अनबॉर्न चाइल्ड है उसके लिए नहीं ठीक है। भय नहीं करना। और भय होगा कैसे? भाई आप इस तरह की मूवीज देखेंगे या प्ले देख रहे हैं या कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जिससे कि भय उत्पन्न हो रहा है, तो वो काम नहीं करना। क्योंकि आजकल तो मैंने जैसा अभी हम लोग की बात हो रही थी कि मेरे जो कलीग्स हैं उनमें जो जिस कोर्स में मैं ये गर्भ संस्कार में पढ़ा रही हूँ उसमें डॉक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजी के भी लोग हैं, क्योंकि वो ये सब चीजें पढ़ाते हैं। तो वो कहते हैं कि यू वोंट बिलीव कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एंजाइटी है, उनको डिप्रेशन हो रहा है, जो कभी सुना नहीं था। तो मदर्स अगर वो उस तरह की चीजों को देखेंगी, उस तरह की चीजों को सुनेंगी, तो उनका बहुत फर्क पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि उकड़ू नहीं बैठना है। उकड़ू जानते हैं? बहुत देर, जैसे हम इंडियन सीट पे जैसे बैठ के हम जाते हैं, तो उतने टाइम के लिए तो दैट लेडी कैन सिट लाइक दैट, लेकिन अदरवाइज शी शुड नॉट सिट लाइक दैट कि उकड़ू बैठ, क्योंकि वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए नहीं ठीक है। आप 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे वैसे बैठे, वैसे नहीं बैठे। और किसी भी तरह के वेग को नहीं रोकना, चाहे वो आपका मल मूत्र, आपको स्नीज, आप छींकने जा रहे हैं, आप खांसने जा रहे हैं, ऐसे आप जानते हैं इस तरह के वेगों को रोकने से कितनी डिजीजेस होती है। इसलिए आपको छींक आ रही है, आप छींक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जाना है, लू जाना है, आपको बाथरूम जाना है, यू जस्ट गो। तो उस प्रेग्नेंट लेडी को तो बिल्कुल भी इन वेगों को नहीं रोकना है। खांसी आ रही है, खांस दीजिए, कुछ भी है। अब वो भोजन के बारे में भी बताते हैं कि कैसा भोजन करना है और कैसा नहीं करना है। वो कहते हैं कि अति उष्ण, खूब गरम गरम आपने खाना खा लिया। आप सब जानते हैं हमारा पेट में जहां हमारा डाइजेशन होता है और उसी के नीचे बच्चा होता है। तो आपने एकदम गरम गरम खाना खा लिया तो उससे क्या होता है, उस बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। बहुत ठंडा, लोग बाग कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं और बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको जन्म से ही अस्थमा होता है। इन सारी चीजों के साथ मालूम है कितनी डिजीजेस जुड़ी हुई हैं जो बच्चों को होती है। हमको लगता है अरे अभी तो ये बच्चा पैदा हुआ है, इसको
ऐसे प्रॉब्लम्स कैसे हैं। तो जब आप इनको पढ़िए ना तब समझ में आता है कि इन कारणों से ये प्रॉब्लम्स हुई। अति तीक्ष्ण, बहुत कड़वा आप खा रहे हैं वो नहीं खाना है। अति गरिष्ठ, जो बहुत हैवी फूड है, हैवी टू डाइजेस्ट, मतलब इट्स जैसे कहते हैं ना बहुत तेल घी का बना हुआ, वो नहीं खाना है। मद कारक पदार्थों का सेवन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल एक ये भी बहुत अच्छा फैशन हो गया है कि हमको ये लगता है कि इफ वी आर मॉडर्न, तो हमको कुछ ना कुछ, चाहे स्मोक करना है, ड्रिंक करना है, ड्रग्स लेनी है, कुछ भी करना है, लेकिन मॉडर्निटी का ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। मॉडर्निटी कहते हैं कि जितना हम ओपन माइंडेड है वो मॉडर्निटी है। तो और ये जो जितने भी मदकारक पदार्थ हैं, आप सब जानते हैं कि अगर स्मोक करते हैं, स्मोकिंग से बच्चे के लंग्स पे सीधे असर जाता है, उनको भी सांसों की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होता है, ढेरों तरह की प्रॉब्लम्स होती है। और लिकर जो है ड्रिंक करते हैं तो सबसे पहले इफेक्ट उसका माइंड पे आता है। वो बच्चे जो हैं वो कम बुद्धि के बच्चे हो जाते हैं, शरीर में भी डिफॉर्मिटी हो जाती है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो किसी भी तरह के मद करने वाले या जो नशा करने वाली चीजें हैं उनका सेवन नहीं करना है, और मांस नहीं खाना। मैं अभी आपको बार बार बता रही हूँ कि नॉन वेजिटेरियन खाना खाने से बचिए, क्योंकि बच्चे के अंदर तभी सौम्यता होगी। वो जैसे कहते हैं ना, उसका उसका हृदय सौम्य होगा, मुलायम होगा, हल्का होगा, और वो एक बड़ी बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इन सब के अलावा जो अनुभवी स्त्रियां हैं, अनुभवी मतलब जो एक्सपीरियंस्ड लेडीज हैं, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, वो जो बात कहें कि ये छोड़ दो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, उनकी बातों को भी आपको सुनना है, कि आपको उनकी कहना मानना है। अगर वो अनुभवी स्त्रियां अगर इस बात को कह रही है तो आप उस बात को मानिए। और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो कहते हैं कि लाल कपड़ों को प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा कि वो क्यों ये कहते हैं, लेकिन ये भी उसमें लिखा हुआ है कि लाल कपड़ों को स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए उस टाइम में, प्रेग्नेंट लेडीज को। और मैंने बहुत से ऐसे परिवारों में देखा है कि जिनमें 7th मंथ्स ऑनवर्ड, 7th 8th एंड 9th मंथ्स में लड़कियों को, जो बहू है घर की, प्रेग्नेंट है वो लेडी, उसको वो नील पहनाते हैं। नील मतलब नीले कपड़े पहनाते हैं, काले कपड़े पहनाते हैं। वो कहते हैं कि नजर नहीं लगे इसलिए पहना है। तो मे बी ये यही कारण हो सकता है, या क्या कारण है वो तो वो ज्यादा अच्छे से जानते थे, लेकिन वो कहते हैं लाल कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, एक बात और बड़ी इम्पोर्टेंट सुश्रुत जी कहते हैं, और वो ये कहते हैं, सुश्रुत चरक ये दोनों ही, मैंने इन दोनों की चीजों को समराइज करके ही आप लोगों को ये बताया। तो वो क्या कहते हैं, दोहत जानते हैं आप लोग? जैसे वो होता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम में क्रेविंग होती है, उसको कहते हैं दोहत। वो दोहत शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है, संस्कृत का एक्चुअल शब्द है दो द्विहृद। द्विहृदय मतलब दो, क्योंकि माँ के अंदर दो हृदय हो जाते हैं ना, एक उसका अपना, एक वो उस बच्चे का। और वो जो क्रेविंग होती है वो एक्चुअली किसकी क्रेविंग होती है? उस बच्चे के मन की क्रेविंग होती है, जो माँ को खाना ही होता है। वो तो बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना, अर्जेंट ऐसा होता है कि नहीं, अब मुझे वो चाहिए तो वो खाना है, खाना है। तो वो कहते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को ये ध्यान देना चाहिए
स्पेशली उसके पति और घर के जितने भी लोग हैं, कि वो उस प्रेग्नेंट लेडी के दोहत का ध्यान रखे, द्विहृद का ध्यान रखे। वो कहते हैं क्योंकि सा यद यद इच्छेत तत् तस्य दापेद लब्ध दोहृदाई वीरवंता चिरायुषम च पुत्रम जनयति। वो कहते हैं कि उसकी जो जो इच्छा होती है वो उसको दे देना चाहिए, क्योंकि लब्ध दोहृद, ये जो दोहद को पाने के बाद ही अगर वो संतुष्ट उसका मन रहता है, तभी वो वीर्यवंत, मतलब एकदम अच्छी, जिसके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत स्टेमिना है, इस तरह के चिरायुषम, जो दीर्घ जीवी है, मतलब लॉन्ग लाइफ वाले बच्चे को जन्म देती है माँ। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात, मैं बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ रही थी, मेरा तो मन करता है कि मैं जितना मैंने पढ़ा, जो भी अच्छा है वो आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़े से चेंज करके अगर बहुत बड़ा हमें फायदा हो रहा है तो उसमें नुकसान क्या है। आप जानते हैं बृहदारण्यक उपनिषद एक उपनिषद है, उसके अंदर बड़ा अच्छा लिखा है। उसमें वो कहते हैं कि कंसेप्शन के पहले अगर जो भावी माता पिता है, जो वो जिस तरह का भोजन करते हैं उसका बच्चे के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पर दोनों माता पिता को भोजन करने की वो बात कहते हैं, और वो क्या कहते हैं कि अगर आपको ऐसा बच्चा चाहिए, कैसा, जो फेयर, एकदम गौर वर्ण हो, और जो 100 इयर्स जिए, दीर्घ जीवी, ऐसा बच्चा हो, लेकिन इंटेलिजेंट हो, लेकिन एवरेज इंटेलिजेंस वाला बच्चा, तो क्या खाना चाहिए माता पिता को? कंसीव करने के लिए जा रहे हैं उसके पहले की बात है, मतलब शाम को उनको क्या खाना चाहिए? राइस प्लस मिल्क, उनको चावल और दूध का बना हुआ भोजन करना चाहिए। इफ दे वांट their child to be fair and live 100 years of age, and लेकिन एवरेज इंटेलिजेंट वो बच्चा, तो उनको राइस प्लस मिल्क खाना चाहिए। दूसरी बात वो क्या कहते हैं? मीडियम फेयर, मतलब ऐसा नहीं है बहुत गौरवर्ण ना हो बच्चा, लेकिन बड़ा ज्ञानी हो, गुड इन स्टडीज, एकदम बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चा हो। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या खाना चाहिए? राइस प्लस कर्ड, चावल और दही, इसका सेवन करना चाहिए दोनों माता पिता को, भावी माता पिता। तीसरी बात वो कहते हैं कि अगर वो कैसा चाहते हैं बच्चा? डार्क इन कलर, उसका रंग काला हो, बच्चा का रंग काला है, रेड आईज हो, आंखें लाल है, लाइफ उसकी बहुत लंबी हो, एंड ए ग्रेट स्कॉलर हो, इंटेलिजेंट इतना हो कि जिसका कोई सानी ना हो। अगर इस तरह के बच्चे की कामना है तो क्या खाना चाहिए? राइस प्लस घी, चावल में घी मिला के खाना चाहिए। आप सब जानते हैं चाणक्य जो थे वो बिल्कुल ऐसे थे, उनका रंग काला था, उनकी आंखें लाल रहती थी, उनको अवश्य लॉन्ग लाइफ मिली थी, और आप सब जानते हैं कि वो कितने इंटेलिजेंट थे, चाणक्य नीति और पूरा साम्राज्य जिन्होंने खड़ा कर दिया, जिन्होंने चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बना दिया, ऐसे चाणक्य की माँ ने अवश्य राइस और घी खाया। तो वो कहते हैं राइस प्लस घी, माँ नहीं, माता पिता दोनों। अच्छा, एक बात वो और भी कहते हैं,
वो कहते हैं अथ या इच्छे दुहिता में पंडिता से, वो कहते हैं और जो ये इच्छा करता है कि उसकी बेटी बहुत इंटेलिजेंट, उसको क्या खाना चाहिए? राइस प्लस ब्लैक सेसमी सीड प्लस घी, मतलब चावल में घी डालें और काला तिल डालें, और ये अगर वो खाते हैं हस्बैंड और वाइफ, तो उनकी बच्ची कैसी होगी, उनकी बेटी कैसी होगी? पंडिता होगी, पंडिता बहुत ज्ञानी होगी, हर तरह का ज्ञान उसमें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वैसे भी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको किस तरह का अपना पूरा दिन बिताना चाहिए, मतलब किस तरह की चीजों को अपने लाइफस्टाइल में ले आना चाहिए। तो वो क्या कर सकती है? मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, ध्यान जिसको कहते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, 1 घंटे करिए, 2 घंटे करिए, 3 घंटे करिए, कोई उसके टाइम लिमिट नहीं है। आप जितना करेंगे आप उतने फिजिकली मेंटली स्वस्थ होते जाएं। यकीन जानिए, अगर आप 1 घंटे रोज मेडिटेशन करेंगे तो आपको एक भी दवा खाने की जरूरत नहीं होगी। आप शारीरिक रूप से भी एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, मेंटली भी आप एकदम शांत हो जाए। इतना इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं मेडिटेशन भी सिखाती हूँ, कि हम जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं तो हमको सारी समस्याएं आ जाती, क्योंकि ये माइंड का स्टाइल है। माइंड कभी नहीं चाहता कि उसको कोई टेम करे, उसको कोई बांधे, वो तो इधर उधर भागना चाहता। तो जो भी मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए आसान चीज क्या है? बहुत ढेर सारे आप YouTube में जाएंगे, गाइडेड मेडिटेशन होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, जैसे एक एक चीज को। अब वो किसी आप बड़े चाहे जो भी, मतलब अपने इंडिया में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ध्यान सिखाते हैं, तो आप उनके उनके गाइडेड मेडिटेशन को लीजिए। 5 मिनट से लेकर 1-1.5 घंटे तक की मेडिटेशन है। 5 मिनट से आरंभ करिए, 5 मिनट, 10 मिनट, और ये इट इज बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरीवन। इसका कुछ नुकसान नहीं होना है, इसका सिर्फ फायदा ही फायदा होना। इतनी ग्रेट चीज है मेडिटेशन। तो उसको तो जरूर, जो प्रिपरेशन टाइम से ही मेडिटेशन सीखना चाहिए हस्बैंड वाइफ दोनों को, क्योंकि कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शांत रहना बहुत जरूरी है। और उषा पान आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, बहुत से लोग करते भी हैं कि तांबे के बर्तन में और पानी को रात भर रखते हैं और सवेरे उसको पीते हैं। उसके भी बड़े मैजिकल इफेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें बहुत सी लेडीज जो है उनको कहीं वॉमिटिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसमें वो नहीं पी पाती हैं। और जो जैसे मैं कह रही थी कि प्रेगनेंसी में कभी भी किसी चीज को ओवरडू नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पीजिए, आधा ग्लास पीजिए, 1 ग्लास पीजिए, लेकिन वो तांबे के बर्तन में रखा हुआ जो पानी है बहुत बेनिफिशियल होता है। सब तरह से आपको क्लीन कर देगा, वो आपका पेट साफ रहेगा तो आप हर तरह से सही रहेंगे। फिर अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए। आप सब जानते हैं कि म्यूजिक भी, जो संगीत है वो भी हमारे सामवेद की देन है। सामवेद से ही ये सारा संगीत निकला है। जो नाट्य शास्त्र है वो सब भी। तो जो म्यूजिक है, जो लाइट म्यूजिक है, लाउड म्यूजिक नहीं, वो शांत म्यूजिक, उसको सुने तो वो बहुत इफेक्ट उसका अच्छा होता है। फिर टॉकिंग टू द बेबी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि
अभिमन्यु की कथा तो सभी ने सुनी है कि अभिमन्यु को उन्होंने कैसे बताया कि चक्रव्यूह के अंदर जाना मालूम हो गया था, बाहर निकलना नहीं पता। तो सिर्फ ये अभिमन्यु की बात नहीं है, बहुत ये अब जैसे कहते हैं ना साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बच्चा गर्भ में है वो माता पिता की बातों को भी सुनता है, इवन उनके इमोशंस को फील करता है। तो इस सब के लिए बहुत जरूरी है कि उस बच्चे से बात करी जाए, उसको जैसे अभी मैंने कहा ना कि पुंसवन संस्कार में, अभी मैं उसके बारे में भी ब्रीफली आप लोगों को बताऊंगी। तो उसमें जैसे उसको वो सब लोग ओथ लेते हैं और उसको कहते हैं ना कि हम सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम एकदम चिंता नहीं करो, जब तुम जन्म लोगे उसके बाद भी हम सब यहाँ हैं, हम सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वो सारा एश्योरेंस वो बच्चा सुनता है, ऐसा नहीं है कि वो इन बातों को नहीं सुनता है, वो बहुत अच्छे से सुनता है। और वो उसके अंदर एक जैसे कहते हैं ना वो इमोशनली एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के रूप में जन्म देता है। जैसे कि हम लोगों ने हिरण्यकश्यप के बारे में भी सुना होगा। मुझे बताने के लिए तो आप लोगों को इतनी ढेर सारी स्टोरीज है, इतनी ढेर सारी बातें। आप सब जानते हैं हिरण्यकश्यप के बेटे का नाम प्रहलाद, मतलब बेटे थे प्रहलाद। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, लेकिन जो प्रहलाद थे वो इतने बड़े भगवान के भक्त थे। वो क्यों हुए? क्योंकि जो उनकी माँ थी वो नारद जी के संपर्क में रही, नारद जी ने उनको बहुत ज्ञान की बातें बताई, अच्छी अच्छी बातें बताई, और उससे वो बच्चा जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था वो प्रहलाद के रूप में उस बच्चे ने जन्म लिया। इसलिए अच्छी बातों को ही सुनने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों की बातों को सुनिए, तो उन सब का बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सबके ऊपर। और जैसा अभी थोड़ी सा पहले ही हम लोग की बात हो रही थी कि लूज क्लोथिंग की बात हो रही थी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके कपड़े ही अलग होने चाहिए, क्योंकि उनको ढीले ढीले कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि जो उस बच्चे का पेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें उस बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, है ना। अब मैं आप लोगों को ब्रीफली इन दोनों संस्कारों के बारे में भी बता देती हूँ, पुंसवन और सीमंत, क्योंकि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखने में लगता है अरे क्या संस्कार है, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप सोचिए कि वो जो स्त्री है जो जिसके पेट में जिसने कंसीव किया, उसको क्या फील होगा कि शी इज नॉट द मतलब अलोन, कि वो अकेली नहीं है, कि वो 9 महीने के लिए उसको जैसे कोई सजा मिल गई है कि अब वो एक बच्चे को धारण कर रही है, इतनी ढेर सारी उसमें फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब कुछ को कर रही है। तो वो अकेली नहीं है, पूरा परिवार उसका पति सब साथ में है। इसलिए इन सब संस्कारों का को बनाया गया। तो पुंसवन संस्कार बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, अरे पुंसवन संस्कार तो पुरुष को जन्म देने के लिए, मतलब बेटे को जन्म देने के लिए, ये बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि जो वैदिक काल है उसके अंदर ये सब चीजें थी ही नहीं कि नहीं सिर्फ पुत्र पुत्र सब कुछ है और पुत्री कुछ नहीं है। तो पुंस का अर्थ होता है पौरुष, पुरुषत्व, और जिसको कहते हैं वीरता, और उसका अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग। पुंस का सबसे पहला अर्थ है स्ट्रॉन्ग, और सवन का अर्थ है सेरेमनी। तो एक ऐसी सेरेमनी जो बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाए, उस अनबॉर्न चाइल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाए, उसको कहते हैं हम पुंसवन संस्कार। उस पुंसवन संस्कार के 3 चीजें उसमें होती है मेन। पहला है औषधि अवघ्राण। औषधि मतलब कुछ औषधियां हैं जिनको पीस के, पानी में पीस के उस लेडी को दिया जाता है, और ये कब होता है? सेकेंड मंथ में होता है पुंसवन संस्कार।
तो जिसको वो सिर्फ स्निफ करती है, मतलब सूंघती है, पीती नहीं है। इस चीज को बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा कि उसको पीना नहीं है। और वो कौन सी औषधि है जो सब एक से बढ़कर एक अच्छी है? कौन सी? वट। वट जानते? बरगद का पेड़, उसकी कोमल पत्तियां या कोमल जड़ या उसके आगे का एक श्रृंग होता है, उसमें निकला होता है, वो आप जड़ भी ले सकते हैं, पत्ती भी ले सकते हैं, या उसके आगे का एक पोर्शन होता है जिससे भी पत्तियां खुलती हैं, उसको भी थोड़ा सा पोषण लेना है। गिलोय, सब लोग आजकल तो क्या कहा जाए, इसके चक्कर में अपने ये जो वायरस घूम रहा है, इसके चक्कर में सब लोग गिलोय, गुर्ज, इन सब का नाम जान गए हैं। तो एक गिलोय होती है, उसकी भी लता होती है, बेल होती है, उसको भी 2-3 उसकी पत्तियां ले लिया आपने। और पीपल, ये सब देव वृक्ष हैं, मतलब इनकी तुलना नहीं करी जा सकती है, इनके अंदर इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तो पीपल की कुछ कोमल पत्तियां लिया और उनको पीस लिया, पीस के उसको छाना और उसको एक कटोरे में लेके दिया जाता है। किसको? उस गर्भिणी स्त्री को जो मतलब सेकेंड मंथ अब उसका कंप्लीट होने वाला है, उस स्थिति में। और उसको कहा जाता है कि तुम इसको अवघ्राण करो। अवघ्राण मतलब सूंघो। तो वो अच्छे से ऐसे करके 3 बार सूंघती है। आप सब जानते हैं कि हम सिर्फ मतलब ऐसा नहीं मुंह से ही हमारा सब खाना हम खा रहे हैं, नाक से जो हम सूंघते हैं उसका भी तो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और वो ये तीनों चीजें जो है वो उस बच्चे के पोषण में, उसको स्ट्रांग बनाने में मदद करती है। और उसके साथ साथ जो लेडी है, मतलब जो गर्भिणी स्त्री है, उसकी कई कंप्लेंट्स को भी दूर करती है, जैसे इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, लेथार्जी, हेडेक, स्लीपलेसनेस या वेस्ट पेन। वेस्ट पेन भी होता है कभी कभी लोगों को, उनमें भी उसको मदद करती है। फिर मैंने ओथ टेकिंग के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया। ये उसको दिया जाता है, वो स्निफ करती है 3 बार अच्छे से। और उस टाइम में वैदिक मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। कोई मंत्र नहीं समझ में आ रहा है तो एक मंत्र जिसको महामंत्र कहा गया है और सभी को करीब करीब याद होता है, वो है गायत्री मंत्र। धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः, ये व्याहृति है। और धियो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका आप उस समय उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र जो है ये पूरी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। फिर ओथ टेकिंग आपको पता है, माँ क्या करेगी, अपने पेट पे हाथ रख के और उसको एश्योर करेगी कि मैं हर तरह से अच्छा भोजन सब ऐसा करूंगी कि जो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। ऐसे ही पिता उसको एश्योर करेगा और फैमिली मेंबर्स एश्योर करेगा। और फिर उसको, लड़की को, सिर्फ उस गर्भिणी को खीर खाने को दी जाती है। और खीर की भी अपनी सिग्निफिकेंस है। इट्स अ पायस थिंग, मतलब पायस, उसका नाम ही पायस है क्योंकि ये उसमें मीठा मीठा भी है, उसमें चावल भी है, अक्षत, चावल चावल नहीं अक्षत है, वो ब्रह्म का प्रतीक है, क्योंकि ब्रह्म भी अक्षत है, वो कभी नष्ट नहीं होता। और उसके बाद हम देखते हैं कि 4th, 5th, 7th, 8th, इनमें किसी भी एक मंथ में आप 5th मंथ में भी कर सकते हैं, 4th में भी कर सकते हैं, 6th में भी कर सकते हैं, 7th, 8th, आपको अगर मन है तो आप हर महीने कर सकते हैं। सीमंत संस्कार, जिसको कहते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार या सीमंत संस्कार, उसका अर्थ बड़ा सहज है। सीमंत कहते हैं बालों को काढ़ना। अब आप सोचेंगे ये क्या मतलब वैदिक काल के लोग लेके आए कि ये बालों को काढ़ा जा रहा है, सीमंतोन्नयन संस्कार है।
और वो भी बाल कौन काट रहा है? बाल और कोई नहीं काटता है, उस स्त्री के बालों को जो उसका पति है, जो पिता बनने वाला है, वो काटता है। अब आप इससे सोचिए कि कितना वो इमोशनल सपोर्ट उस लड़की को दे रहा है। घर वाले सब एकत्रित होते हैं और उसको एकदम मुलायम एक सीट पे बैठाला जाता है और उसका पति, उसके अंदर तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो उस टाइम में अवेलेबल होती होंगी। गूलर कहते हैं कि मतलब ऐसा गूलर जिसके अंदर, गूलर एक पेड़ होता है, तो उसमें जिसमें इवन नंबर के फल लगे हैं वो, फिर 3 दूर्वा घास, फिर एक पोकोपाइन होता है ना, उसका क्विल मतलब शाही का एक कांटा, और पीपल की एक डंडी। अब इन सब की कोई मतलब बहुत होंगी, ऑब्वियसली इनकी सिग्निफिकेंस होगी, लेकिन आजकल के टाइम में बहुत से लोग ये पूछते हैं ये हमें नहीं मिल रहा, हम नहीं इनको पा सकते, तो हम क्या करें? आप बाहर रह रहे हैं, आप दोनों अकेले रह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट डू दैट विथ सिंपल कोम। ये जो है, ये प्रक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि पति अपनी पत्नी को वहां पर बैठालता है एक मुलायम से आसन पे, और उसके बाद आगे से वो ऐसे करके ऊपर करना शुरू करता है। उन्नयन मतलब ऊपर करना। तो वो अपनी पत्नी के बालों को धीरे धीरे 3 बार बस काटता है, और फिर वो ये कर सकता है कि उनको मतलब धीरे से बांध दे, या जितना जितना उससे हो पा रहा है उतना उसको वो कर सकता है। फिर वो क्या करता है, राइस, तिल एंड घी, इन चीजों को अपनी पत्नी को दिखाता है। मैंने जैसे बताया ना, राइस जो अक्षत है वो प्रतीक होते हैं ईश्वर का, पर ब्रह्म का। अक्षत जो कभी क्षत नहीं होता उसको कहते हैं अक्षत। ऐसा ही ईश्वर ऐसे ही है, वो कभी भी नष्ट नहीं होते। ऐसी ही आपकी सोल है, वो कभी नष्ट नहीं होती। तो वो दिखाता है। फिर तिल, तिल कहते हैं कि ईश्वर के ही अंगों से निकले हैं, ये इतने बेनिफिशियल होते हैं काले तिल। और घी, घृत तो सब कुछ को पवित्र कर देता है, उनको सिर्फ दिखाता है। और किस लिए? कि वो प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्ग लाइफ, कि उनके दर्शन करने से उसको लॉन्ग लाइफ के लिए, उस बच्चे के, अपनी पत्नी के, और प्रॉस्पेरिटी के लिए वो उनको दिखाता है। फिर घर में जितने भी लोग हैं सब क्या करते हैं, उस लेडी को ब्लेसिंग्स देते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं वो उसको ब्लेसिंग्स देते हैं कि तुम अच्छी संतान को जन्म दो और तुम भी स्वस्थ रहो। सबसे जरूरी ये है कि वो पहले ये ब्लेस करते हैं कि वो स्त्री स्वस्थ रहे और वो हर तरह से अच्छी संतान को जन्म दे। और फिर जो माँ है, जो मदर है, मतलब जो अभी गर्भिणी है, वो क्या करती है कि वो मौन रखती है। कब तक? जब तक तारा नहीं निकलता। इससे मौन रखना जो है ना, वो भी अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो आपके अंदर विल पावर को बढ़ाती है। तो वो उस समय तक मौन रखती है, हाथ के इशारों से वो बात कर सकती है, उसको पानी पीना है, कुछ भी करना है, बट ऐसा करती है। एंड देन दे ऑल कैन हैव फूड टुगेदर। और बस इतना होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। ऑब्वियसली इन चीजों को हम अपने हिसाब से, कि हम, क्योंकि आप सब जानते हैं कि समय के साथ हमको बहुत चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि सीमंतोन्नयन संस्कार में इतनी ढेर सारी चीजें लगती हैं। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, हमारे यहाँ तो ये सब कुछ होता ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं कूलर किसको कहते हैं, या वो विदेश में है वो बोलते हैं हम क्या करें।
तो कुछ नहीं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो इमोशन है वो ज्यादा काउंट करता है बनिस्बत उस रिचुअल के। आप कितना उसको प्रेम दे रहे हैं उस गर्भिणी स्त्री को, आप कितनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं उस गर्भिणी के प्रति और उस बच्चे के प्रति, ये मैटर करता है। ठीक है। अब अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो, क्योंकि गर्भ संस्कार के अंदर ऐसे तो बहुत बड़ा ही क्षेत्र है, लेकिन जो भी मेन पॉइंट्स थे, व्हाटएवर वाज यू नो, जो महत्वपूर्ण थे, उतनी मैंने आप लोगों को बातें बता दी। इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, you all are most welcome. I request participants, if they have any questions to ask, please unmute yourself, or you can raise a hand, or you can put the question in the comment section. I think it would be like a great opportunity for us to ask questions to expert like Shivani ma'am. So, any questions? What about after delivery? देखिए, मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बताया कि ये जो गर्भ संस्कार है, इसके अंदर ये 3 संस्कार आते हैं। आफ्टर डिलीवरी ऑब्वियसली अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको एक बेटर जरूर बच्चा मिलेगा। एक बेटर बच्चा मतलब जो फिजिकली भी बेटर होगा और मेंटली भी बेटर होगा, इमोशनली बेटर होगा, हर तरह से बेटर होगा। तो इट विल बी इजियर फॉर पेरेंट्स टू उस बच्चे को पालना, उसका पालन पोषण करना आसान होगा। और उसके बाद भी बहुत ढेर सारे संस्कार हैं, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे ही संस्कार शुरू हो जाता है। जात कर्म संस्कार, फिर उसका मतलब बालों का आप देखते हैं ना, मुंडन होता है। कुछ संस्कार तो ऐसे हैं जो अभी भी हमारे घरों में हम यूज करते हैं, उनको जात कर्म भी बहुत से लोग करते हैं। और जिसको कहते हैं चौलकरण या मुंडन संस्कार, वो भी होते हैं अधिकतर घरों में। फिर विवाह संस्कार तो होता ही है, एवरीवन नोज दैट, इट्स मतलब उसको तो बताने की जरूरत नहीं। और अंत्येष्टि, इतने संस्कार तो होते रहते हैं। अब विद्यारंभ, उसके पहले मतलब बहुत, वो 16 संस्कार मैंने आपको बात कही, तो वो सब होते हैं। Is it danger for pregnant lady on day of चंद्र ग्रहण? मैं पूरा पढ़ूं? She is supposed to take rest the day when Chandragrahan falls. Yes, of course. ये बात भी अब साइंटिफिकली प्रूवन हो रही है कि चंद्र ग्रहण के टाइम में, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले भी कह रही थी कि एवरीथिंग इज एनर्जी, और हमारा क्योंकि ये शरीर जो है ये पंचभूतों से मिलकर बना है, आप सभी इस बात को जानते होंगे। तो जितनी भी चीजें हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो भी है, सब हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है, हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। और कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, जो मन है हमारा वो चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो इतना फ्रिकल है, इतना जैसे चंद्रमा अपनी हर समय गति बदलता रहता है ना। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, दे नो कि वो कभी यहाँ रहता, कभी यहाँ रहता, कभी इस राशि में, कभी उस राशि में, ऐसे ही हमारा मन भी घूमता रहता। तो ये सारे ग्रहण का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और गर्भिणी स्त्री के ऊपर तो बहुत पड़ता है। और इसको लोग एक्सपीरियंस से बताते हैं कि हम चंद्र ग्रहण के टाइम में हम कुछ काट रहे थे, तो जो बच्चे ने जन्म लिया उसकी उंगली में कुछ कटा था, या हम कुछ बांध रहे थे तो उसके कॉर्ड जो थी वो गले में थी या हाथ में थी।
तो हम किससे सीखते हैं? लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं। और अगर हम देखते हैं कि उस ग्रहण टाइम में अगर हम शांति से बैठ के सिर्फ रेस्ट नहीं करना चाहिए, आई थिंक हमको कोई भी जिस भी हम रिलीजन को फॉलो करते हैं उसमें जो भी अच्छे मंत्र हैं या अच्छा, मान लीजिए कुछ नहीं है, सीताराम है या गुरु गोविंद सिंह का वाहे गुरु है या जो भी है, हम उनको मन में जप कर सकते हैं। उसके एडवांटेज ही होंगे, डिसएडवांटेज कभी नहीं। How do we as a woman help? Okay, lots of questions. Okay, कंजल ने लिखा है कि how do we as a woman help the to be father to understand that child bearing and child rearing is a dual responsibility, especially when his parents aren't supportive of sharing responsibility. मैंने आप लोगों को ये कहा कि चाइल्ड, किसी एक बच्चे को जन्म देना इज नॉट एन इजी टास्क, ये बहुत बड़ी बात है। इसी के लिए मैंने आपको बताया कि उस टाइम में भी प्रिपरेशन होती थी, तो हस्बैंड वाइफ दोनों की प्रिपरेशन होती थी। तो उस जो आपका पति है उसको ये पता ही होना चाहिए कि वो अगर पिता बनने जा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट डे क्या, उससे 1 महीने पहले से शुरू होती है कि उसको भी अपने आचार व्यवहार को सही रखना है, तभी वो एक अच्छे संतान का पिता बनेगा। आप सोचिए कितने लोग हैं जो इतना परेशान होते हैं अपने बच्चों के लिए। उनके बच्चों में कहीं फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कितनी, फिर उस पिता को कुछ भी नहीं सूझता है ना। उसको कोई किसी तरह की मेंटल कोई प्रॉब्लम हो गई तब फिर उनको कुछ नहीं समझ में आता। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि उसको हम पहले ही समझ लें, उसको पहले ही संभाल लें। तो आपको जो भी है उसको अपने हस्बैंड से इस बारे में बहुत अच्छे से पहले बात करनी चाहिए कि देखो हम लोग अगर ये करने जा रहे हैं तो these things we both have to follow। और अगर आप किसी कोई ऐसा बड़ा है, कोई है जो उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को समझा सकता है कि ये चीजें कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो वो भी समझेंगे कि वो उन्हीं के घर में वो बच्चा उन्हीं के वंश में जन्म लेने जा रहा है। There are a lot of questions which is there, but most of the points which I have read is that people they had certain notions about pregnancies and full moon days, but now they have got an understanding about this. People they're asking that if we have any research papers or scientific evidence related to what we have done up to explain people scientifically and not help people to understand that this is something which is superstition, but we have some scientific evidence based on this. So this is someone has asked. ओके आप जानते हैं कि पहले सारी चीजों को, जो भी हमारे यहाँ की चीजें थी उनको एक टाइम ऐसा आया कि उनको सबको ये माना जाने लगा कि ये इंडियंस तो बहुत ऐसे सुपरस्टिशियस और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि जो रामदेव जी हैं उनके दंत मंजन जो है उनको क्या कहा जाता था कि अरे इसके अंदर ये पड़ा है, ये हर्ब पड़ा है, वो हर्ब पड़ा है, ये किसी काम की नहीं है चीजें। लेकिन बाद में क्या हुआ, people started using them and they felt कि it's such a nice thing। आपको मालूम है आज के टाइम में कोलगेट की कितनी जैसे कहते हैं ना कि जहां पर उनकी फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई, लिटरली बंद हो गई। तो जहां तक रिसर्च पेपर की बात है, whatever I told you all, it's from सुश्रुत, चरक, अथर्ववेद, इन्हीं सब से मैंने बातें कही।
और अगर आप उस समय के लोगों को थोड़ा सा भी जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि दे वेर, जैसे कहते हैं ना, एक जीनियस है, एक सुपर जीनियस, कि उनके द्वारा मैथमेटिक्स में जो चीजें बना दी गई, उन्हीं को वैदिक मैथमेटिक्स में आज पूरी दुनिया अपना रही है। उनके एक छोटे छोटे सूत्र से सारी मैथ्स की स्ट्रीम्स निकल रही हैं। तो सबसे जरूरी ये है कि हमको विश्वास होना अपने ऊपर, अपनी सभ्यता पे विश्वास होना, कि अगर उन्होंने ये बात कही है, और आपको मालूम है हम ही नहीं विश्वास करते, ये एक मजेदार बात है। आई हैव बीन टू यूएस फॉर many years, and I saw people there, they are so much into these things, they are so much into योग हवन, इन सब के अंदर है वो लोग, बहुत से लोग। और अभी तक तो किसी को योग भी नहीं समझ में आता था, प्राणायाम भी नहीं समझ में आता था, बट ये जब से ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों ने इसके देखे कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो when they are doing it, now we are copying that. हमारी एक आपको मालूम है, ये इतने सालों की जो गुलामी है ना, उससे हम ऐसे हो गए कि हमने अपनी चीजों को कम समझने लगे। उसके लिए हमको वेस्ट के साइंटिफिक पेपर्स की जरूरत है। वी डोंट थिंक कि जो चरक और सुश्रुत की इतनी बड़ी साइंस है, जिस आयुर्वेद की वजह से, अभी मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, इस समय जो ये चल रहा है कोरोना वायरस, इसमें सारे इंडियंस ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि आयुर्वेद ने उनको कितना हेल्प किया। अगर इतना हम लोग आयुर्वेद के प्रति हमने अपनी निष्ठा नहीं रखी होती, हमने ये नहीं देखा होता कि काढ़ा भी हम पी सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम वैसा भी कर सकते हैं, हम चप्पलों को हमको बाहर ही उतारना चाहिए, हमको अपनी जो बातें दादी नानियां बेचारी कहती चली आई थी कि अपनी ये जो है किचन में चप्पल नहीं लाओ, मतलब छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको हमने अपनाया, और फिर हमने देखा कि नहीं, these things works। तो ये जो गर्भ संस्कार है, ये इट्स नॉट ओनली हियर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी कलीग्स हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अच्छा होलिस्टिक सा बनाया गया है, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसके अंदर साइकोलॉजी जिन्होंने एक से एक प्रोफेसर्स वो भी हैं, एंड व्हेन वी टॉक देन वी जस्ट कहते हैं ना, अमेज होता है, ऐसे होते हैं कि ऐसी सारी बातें हमारे अपनी सभ्यता में इस तरह से कही गई थी, और जिनको कहीं हमने फॉलो करने से हम रह गए, तभी शायद हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आई। नाउ दे आर कमिंग बैक। अब जैसे छोटी सी बात है कि इसके अंदर बार बार क्या कहा जा रहा है कि ये सिर्फ उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि वैदिक काल में अगर आप गोल्डन पीरियड या डायमंड पीरियड, कोई भी पीरियड आप कह सकते हैं फॉर वुमेन, इट्स दैट। आप किसी भी I एक think समस्या में आके आप हमसे पूछ सकते हैं कि उस टाइम में इसका क्या होता था, एंड आई कैन आंसर यू। सो दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताया वो सब आप सुश्रुत, अब तो ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप सुश्रुत पढ़िए, आप आयुर्वेद पढ़िए, एंड these all things are there only. You have to have faith on your things, and those people who are really doing it, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ? Anyone? Right, we can take a last question, which has been asked by Ms. Gulnaz, that nowadays there are so many artificial ways of conceiving, and Yes. if you could share some thoughts on that.
आप सब जानते हैं भगवान कृष्ण को, तो सब लोग जानते होंगे, है ना? सब लोग जानते हैं। उनके जो भाई थे उनको कहते थे बलभद्र, बलराम। उनका एक नाम संकर्षण भी है। अभी जो आप लोग ये बातें कर रहे हैं ना, उसके लिए तो ये चीज आपको मालूम है संकर्षण का मतलब क्या होता है? किसी को खींच के कहीं और पहुंचा देना। और हम सब जानते हैं कि वो देवकी के गर्भ से यहाँ पर ले आए गए थे नंद के घर में। तो ये क्या है? ये हम लोग आजकल के टाइम में क्या देखते हैं कि एक सेरोगेसी की बात करते हैं ना, सबसे लेटेस्ट जो फील्ड है वो इस समय सेरोगेसी। तो वो सेरोगेसी का वो उदाहरण बलराम जी है। आप लोग सब गूगल पे जाके अच्छे से उनके बारे में पता करिएगा कि उनका नाम संकर्षण क्यों है, देन यू विल नो। अभी जो मैंने ये बात कही नियोग से संतान होने की, कि वो टाइम मतलब जैसे एक टैबू ऐसा बना दिया गया ना बाद में सेक्स को या बच्चों को जन्म देने का। वो लोग बड़े क्लियर माइंडेड थे। जो मॉडर्निटी की बात हुई ना कि मॉडर्न होना क्या है, आपका माइंड ओपन होना चाहिए। उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई ठीक है, हमारे सत्यवती ने ये निर्णय लिया। सत्यवती आप सब जानते हैं कि जिनसे फिर ये कुरुवंश उत्पन्न हुआ। ये क्योंकि उनके दोनों पुत्र लड़ाई में मारे गए थे, तो उनको लगा कि अब ये कुरुवंश चलेगा कैसे। तो सत्यवती को अपने जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब पाराशर मुनि से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था व्यास। तो उन्होंने कहा एक मेरा पुत्र वो है, तो वो चले गए थे। जो व्यास थे वो पाराशर मुनि के पास ही रहते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक मेरा पुत्र जीवित है और उससे मैं इन दोनों से हम संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, उसको कहते हैं नियोग। और उन्होंने अपने उस पुत्र से इन दोनों विधवाओं से, जो उस समय विधवा थी क्योंकि इनके पति नहीं थे, इनके पति युद्ध में मारे गए थे, और इनसे उन्होंने क्या करा, पुत्रों को जन्म हुआ, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, धृतराष्ट्र और पांडु। तो वो सभ्यता ऐसी हश हश वाली सभ्यता नहीं थी। वो चीजों को एकदम सामने देखते थे, उनको छुपा के और कहीं नीचे रख दें और कोई शर्म की बात हो, इस तरह की सभ्यता संस्कृति नहीं थी। मैंने आपको ये भी बताया कि उस टाइम में ऐसे लड़कियों की शादी नहीं करी जाती थी कि माता पिता ने डिसाइड कर लिया ओके तुम बस अब इसी से शादी करो। ये जितना आप देखते हैं जाति प्रथा, ये सब कुछ नहीं था। जो बुद्धि का काम करता था उसको ब्राह्मण कहा जाता था, जो जिसको कहते हैं ना रक्षा का काम करता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था, जो भरण पोषण का काम करता था या जिसको कहते हैं व्यापार करता था, बिजनेस करता था, उसको वैश्य, और जो साफ सफाई इन सब का काम करता था वो शूद्र कहलाता। तो एक ही परिवार में अगर 4 बच्चे हैं, 4 अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो सकते थे। तो वो लड़की ये देखती थी कि हमको किसके साथ शादी करनी, तब वो डिसाइड करके और अपने पेरेंट्स को बोलती थी, और वो सिर्फ फैसिलिटेट करने का काम करते थे। ओके यस वी आर सो हैप्पी यू, मतलब लड़का लड़की दोनों ही चूज करते थे, उन दोनों के उस पे ही बात होती। तो वो एक अलग ही सभ्यता थी, उसको ही जब हम लाना शुरू करेंगे ना अपने जीवन में, तभी हम उसको जान पाएंगे कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए है फेथ एंड जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, इसके पीछे अब आप ये सोचिए कि अगर आप गर्भ धारण के समय ईश्वर का नाम लेते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए ना। हम कहते हैं जो नहीं भी मानते ईश्वर है वो भी ये तो मानते हैं कि किसी ने जन्म दिया। नेचर को तो आप मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं,
आप प्रकृति से ही प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना तो सब लोग कर सकते हैं ना, प्रेयर तो सब लोग कर सकते हैं। तो आप प्रकृति से ही प्रार्थना करिए कि आप हमें एक अच्छी संतान को जन्म दीजिए। इतने में तो कोई बुराई नहीं है। फिर जो चीजें उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, और उनको हर एक के घरों में आप देखेंगे, बात करेंगे तो जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो उन चीजों को मना करते हैं। और कुछ कुछ चीजें सुश्रुत से अभी तक चली आ रही, तो जितना आप फॉलो कर सकते हैं। और फिर अगर जैसे चरक कहते हैं ना, किसी भी बच्चे के जन्म में 5 चीजें मतलब कारक होती हैं। एक है माता, सबसे पहली माँ, फिर पिता, फिर वो कैसा खाना खा रहे हैं, फिर वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है बच्चा, और 5वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उस बच्चे के कर्म, उस जीव के कर्म जो आपके यहाँ जन्म लेने वाला। तो अगर उस जीव के कर्म अच्छे होंगे तो आप इन सब चीजों को, जितने लोगों ने यहाँ सुना है उनमें से कोई ना कोई फॉलो जरूर करें। और अगर उसके नहीं अच्छे होंगे तो वो सोचेंगे ये पता नहीं क्या बात बताई, we are not orthodox, you know, and we are so modern and we will not. लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ उस बच्चे और पेरेंट्स और सोसाइटी एंड एवरीवन उन्हीं का हो। ठीक है? Okay, right. I think there are many questions, but I think because of lack of time, we'll not be able to address all the questions. If right. Also, before we end the session, I request Ms. Moksha Gujar to share something about her thoughts and also share something about the upcoming free event called Bal Mela. So, here you go, Moksha. So good afternoon everyone. I am Moksha Gujar here. और ये सेशन बहुत इंटरैक्टिव था, नॉलेजेबल था एंड ऐसा था कि जो हमारे एशियन टेक्स्ट थे, हमें खाली ये पता है कि अगर शेक्सपियर हो या जो वेस्टर्न कल्चर से आते हैं हमें उसी की ही जानकारी होती है। हमें ये जानकारी नहीं होती कि हमारे भारत में ही इतनी सारी प्रथाएं हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, ऐसे नहीं कि सुपरस्टिशियस है। तो उन पे आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमें भारत का भी एक पार्ट मिल रहा है यहाँ पे पढ़ने को, जो अलग अलग वेदास है, आपने वहाँ से भी इंफॉर्मेशन हमें दी है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये सेशन हमें अभी सुनने मिला। सो बिकॉज इन फ्यूचर को हम में से कोई ना कोई तो मदर्स बनने वाले हैं, फैमिली होने वाली है, या किसी को सिखाने वाले, तो वो अभी राइट एज पे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये सुपरस्टिशियस है। जब कोई बोलेगा तो हम वो ओपनली एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू मैम टू बी हियर। एंड yes, so coming back to the Bal Mela, so Bal Mela is an novel thematic event. So it has various, तो हमेशा हर साल अलग अलग themes होती है। इस साल हमारा थीम नवरस के ऊपर है, which is emotional express. I'll just share a video so it is much more clear. Can I share the video? Just give me 1 minute. I request all the participants to please mute themselves. Janvi ma'am, if Moksha can share the Moksha screen. will be able to share now. She is the co-host. Okay. All right, ma'am. I'll do that. Is the screen visible? Yes, it is. All right. Hello everyone. Let's have a glimpse of Bal Mela 2020. We had so many things like the puppet show, dramatization, live activities,
Indeed, we had a successful event. And this year, we are back. So save the dates of Bal Mela 2021, 25th and 26th of June. Looking forward to see you soon. Yes, so this was a little video we prepared for the Bal Mela which is coming up. So it is just now 2 weeks to go because next to next Saturday is our Bal Mela. So we are looking forward for everyone to join in. And even if you don't have kids, it will be a great fun activity and it is age inclusive. It is not just kids or not just senior citizens. It is for everyone who want to learn new things. जो एंटरटेन हो सकते हो उसमें फन एक्टिविटीज़ होगी एंड बहुत कुछ जैम पैक्ड है विद एवरीथिंग पॉसिबल and it is a great way to even get the family together. So there are activities where you all can do things together. So it is age inclusive and we are looking forward for everyone to join in with us and please spread the word as well. Thank you very much, Moksha, for sharing such a beautiful information and in a very brief manner. And now, not taking a lot of time, I request. No, I will now give a vote of thanks to Shivani ma'am for being with us, for sharing a lot of information related to Garbha Sanskar. It is like immense pleasure to invite you and learning a lot of things from you, ma'am. Specifically, when people think that it is superstitious and it is only responsibility of a mother to take care of the child, but it is you have cleared the notion that it is like it is the responsibility of the entire family to take care of the growing child. And we know that we have learned in the science concept that child development starts from conception. But you have also cleared this notion that it is much beyond that. We have the parents needs to be have the environment emotionally attached to the baby as well as each other and the entire family. So thank you very much, ma'am, for this. I also would like to thank Dr. Kirti Pathak, Head of Human Development Department, for arranging and organizing this event for us. Also, thank you, Dr. Mala Panduram, Principal at Dr. Bevan College of Home Science, for giving us permission to conduct this session and organize this session. RUSA for sponsorship and funding, and last but not the least, thank you very much to all the participants for being with us, joining us the session, and because without you all, the session would have remained incomplete. So thank you very much once again. I'm also putting a website, college website, where if you wish to know more about PGEC course 2021-22, then you can refer to the website. And if you have any queries related to the course, you can contact us back, and we will definitely share flyers and videos related to the course and the upcoming event by the way. So thank you very much. I'll just put the comments. I mean, in the comment section, the website. Just give me a minute. Otherwise, if you have anything to share about the webinar, what your thoughts, you can definitely share.